Hello and warm welcome to everyone. This is your maths teacher Rajiv Sharma from Government Middle School, Mehndipur, Shaheed Bhagat Singh Nagar. Welcomes you in this session of mental ability. Yes, आज का session mental ability ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, मतलब ਕਿ ਜੋ competitive exams ਅਸੀਂ face ਕਰਦੇ ਹਾਂ, NTSC, NMMS ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ exams ਵਿੱਚ ਜੋ mental ability ਨਾਲ related questions ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਉਡਾਨ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? 100 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 100 ਤੋਂ ਬੇਟਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ 102 112 122 132 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ से देखते हैं क्योंकि 10 into 10 is 100 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ 2 ਹੈ ਇਹ 10 ਟਾਈਮਸ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 to 200 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 10 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ देखो 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ 200 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 201 202 203 204 205 206 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ? 100। ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 299 ਤੱਕ ਦੀਆਂ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ 100 ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 10 plus 100 is 110 यानी कि 110 बार। सो साढ़े को उत्तर होएगा 110 टाइम्स, राइट? हाँ जी, पहले बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 319, एक पासे नूं सुट्टण ते आभास संख्या आउण दी की संभावना है? सो पहले बच्चों सानू पता है डाइस दे विच कितनी संख्यावां हुंदियां हन? कुल मिला के 6। किन्ने किहड़े हत्थ लगे हुंदे हन? 1 2 3 4 5 6 हर एक पासे ते एक एक अंक जिहड़ा हैगा आ ओह छपिया हुंदा है। ठीक है, हुण 1 2 3 4 5 ते 6 इन्हां विच अपास संख्यावां किहड़ियां ने? अपास संख्यावां ओह संख्यावां हुंदियां हन जिहदे सिर्फ 2 ही गुणनखंड होण, ना 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ना 2 ਤੋਂ ਘੱਟ। सो एक तो साडे कोल 2 है, एक की है 3 होर ते 5। सो इस प्रकार साडे कोल कुल मिला के कितनी अभाज्य संख्यावां ने? 3 अभाज्य संख्यावां ने। तो असीं लिखांगे अभाज्य संख्यावां आउण दी संभावना होगी। हाँ जी, कुल कितनी संभावना अभाज्य संख्या दियां? 3। ते कुल संख्यावां कितनियां ने डाइस दे विच? 1 2 3 4 5 6। मतलब जे मैं डाइस नूं छालदा हां तो 6 भी आ सकदा है, 4 भी आ सकदा, 3 भी आ सकदा, 2 भी आ सकदा, 1 भी आ सकदा है। ठीक है ना जी? ते कुल संभावनावां ने 6। सो 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 3 एकम 3 3 दूनी 6। सो इस प्रकार अपार संख्यावां आउण दी संभावना होगी 1/2। साडे कोल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन। जो साडे कोल हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਅਨਦਰ 5 डिजिट ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਅ ਟ੍ਰਿਕ ਫॉर ਇਟ। ट्रिक की है
ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦਾ ਲੋਅਰ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 7 into 9। ਸੋ 9 ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ 1 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ 0 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, 70 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਆ 7 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, we'll get 63। तो 7 into 9 is 63। इजी है। ऐसे तरीके से सवाल आ जाता है 83 into 99। फिर की करेंगे 83 लिख के हाउ मेनी जीरोस लगणगियां, 2 जीरोस लग जाणगियां। एचओ ਅਸੀਂ 83 ਨੂੰ सबट्रैक्ट कर देना है। सो 10 जो दिन गए 7, 9 ਚ 8 ਗਏ, 1 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 8। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 72519 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 7 ਸੀਗਾ, 7 ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4 ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 7 2 5 1 9। ਇਹ ਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 10 ਚ 9 ਗਏ 1, 9 ਚੋਂ 1 ਗਏ 8, 9 ਚੋਂ 5 4, 9 ਚੋਂ 2 7, 8 ਚੋਂ 7 ਗਏ 1, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1 ਆਏਗਾ 5 2 ਤੇ 7। So this is the product of these two numbers. So dear students, competitive exams ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 334 ਹੈ ਉਡਾਨ ਸ਼ੀਟ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ C ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਨੂੰ 32 ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ABCD ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ABCDE FGH IJ KLMNO PQRST UVWXY Z ऐसे कहना लिख लेना है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 3 ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ C ਨੂੰ 3 ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ 32 ਦੇਖिए 32 ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। B ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ, A ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ, S ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੇਖੋ O ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ 15 16 17 18 and 19, H 5 6 7 and 8 टोटल करके देखिए इसका। सो 4 plus 1 is 5, 5 plus 19 is 24, 24 plus 8 is 32। तो यही ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ 32 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ DANCE। ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ D ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 4, A ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1, N ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ N 10 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ 11 12 13 and 14। C 3 plus E कितना है 5। टोटल करके देखो इसका 4 plus 1 is 5, 5 plus 14 is 19, 19 plus 3 is 22, 22 plus 5 is 27। सो इस प्रकार डांस का कोड होएगा 27। क्वेश्चन नंबर 346 है ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ 70 ਅਤੇ 125 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਅਤੇ 8 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 70 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ 5 ਬਚੇ, ਜਦੋਂ 125 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ
ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨੇ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ 13 ਹੈ, 13 ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਚ 1 12, ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ 13 - 1, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ 12 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 12। मतलब है कि जो एक बाकी बचा है वो पूरी तरह भाग होने वाली संख्या नालों एक ਵੱਧ है। ठीक है, इसे तरीके नाल आपां सवाल करना है। साडे कोल है 70, ठीक है, बाकी कितना बचता है 5, इसलिए 70 - 5 कर दईए। पहला कितना आ गया 65, उस तो बाद 125 नूं भाग करन ते कितना बचता है 8, ਇਹ ਚੋਂ 8 ਘੱਟ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 117। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਗੁਣਨਖੰਡ। 13 ਪੰਜੇ 65 ਤੇ 13 ਨੌਂ 117, 13 ਨੌਂ 117। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਮਸਾ ਕੀ ਹੈ 13, ਸੋ ਮਸਾ ਕੀ ਹੈ 13, so highest common factor is 13। so ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 13 ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 13 ਹੈ, 13 ਹੈ, right? so dear students, question number 349 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ 30% ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, 50% ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 500 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ x। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ x। ਹੁਣ x ਦਾ 30%, ਸੋ x ਦਾ 30% ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਲੱਸ x ਦਾ 50% ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਲੱਸ 500 ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ x ਕਿਤਾਬਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ x ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ x ਦਾ 30% ਕੀ ਹੋਏਗਾ, x ਗੁਣਾ 30/100 ਪਲੱਸ x ਗੁਣਾ 50/100 ਪਲੱਸ 500 ਬਰਾਬਰ x। 0 0 ਕੱਟ ਗਈ, 0 ਕੱਟ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 3/10 x plus 5/10 x plus 500 is equal to x। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਘੁੱਤਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲਘੁੱਤਮ ਆਇਆ, ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10। ਹੁਣ 3x plus 5x plus 5000, 10 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ we'll get 10, और 10 into 500 is 5000 is equal to x। सही से ये साढ़े को आ जाएगा हम 8x plus 5000 is equal to 10x, right? और इसे लिख सकते हैं 5000 is equal to 10x minus 8x, right? so इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो साढ़े को आ जाएगा थे 2x 5000, so 5000 is equal to 2x और x is equal to 5000/2, साढ़े को आंसर आ जाएगा 2500। so x is equal to 2500। कुल किताबां 2500।
356 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 144 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਗਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ L ਸਕੁਅਰ। ਸੋ L ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 144 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ L ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ मतलब लेंथ इंटू लेंथ भुजा गुणा भुजा बराबर है 144 मीटर स्क्वायर। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ L ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 144 ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 144 ਕਿਹਦਾ ਵਰਗ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ 12 ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ m ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 12m ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 मीटर स्क्वायर। इसमें ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਵਾਂਗੇ आपस में। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ L आ जाएगा 12 मीटर। सो इस प्रकार भुजा की लंबाई है 12 मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 358 है ਸਾਡੇ ਕੋਲ कि नीतू भारती तो 11 साल छोटी है। 15 साल बाद भारती की उम्र नीतू की उम्र का 1.2 गुणा हो जाएगी तो नीतू की हुण उम्र कितनी है। सो वर्तमान असी उम्र पता करनी है नीतू की। लेकिन साढ़े को रैफरेंस कितों सानूं मिलता पिया आ कि भारती तो 11 साल छोटी है नीतू। आ देखो जी इतों रैफरेंस लेना असी। इसका मतलब यह है कि जो मेरे को भारती की उम्र मैनू ज्ञात होंदी तो मैं नीतू की उम्र दस सकता सी। हुण भारती की उम्र मैनू नहीं पता फिर मैं की करूँगा कि भारती की उम्र मन के चलूँगा x साल। सो मान लो भारती की उम्र है x है x। ठीक है जी। हुण फॉलो करते हैं स्टेटमेंट नूं। नीतू की भारती तो 11 साल छोटी है मतलब नीतू जी है वो 11 साल छोटी है। सो नीतू की उम्र होएगी नीतू की उम्र होगी x माइनस 11 क्योंकि 11 साल छोटी है भारती तो। 15 साल बाद भारती की उम्र नीतू की उम्र का 1.2 गुणा होगी। हम 15 साल बाद दोनों की उम्रों के 15-15 साल जुड़ जाने ना। फिर लिखांगे 15 साल बाद भारती की उम्र कितनी हो जाएगी एक्स के 15 साल होर जुड़ जाने हैं। भारती की उम्र होगी x प्लस 15 तो नीतू की उम्र कितनी होएगी 15 साल बाद नीतू की उम्र होगी x माइनस 11 प्लस 15। ठीक है जी। सो ये साढ़े को आ जाएगा x प्लस 4। अगे चलते हैं जी। हुण अगे प्रश्न मुताबिक की है 15 साल बाद की उम्र साढ़े को आ गई। 15 साल बाद भारती की उम्र हैगी x जमा 15 तो नीतू की उम्र हैगी x जमा 4। हुण प्रश्न अनुसार की है कि जो भारती की उम्र है नीतू की उम्र का 1.2 गुणा हो जाएगी। ध्यान देना देखो भारती की उम्र कितनी है भाई आ रही x प्लस 15। 15 साल बाद भारती की उम्र है x प्लस 15 जो कि नीतू की उम्र x जमा 4 इसका कितना गुणा 1.2 गुणा हो जाएगी। ठीक है। हुण असीं इसनूं हल करना है। सो x जमा 15 गुणा कर लो जी ये है 1.2x प्लस 4 इंटू 2 इज 8 एंड 4 इंटू 1 इज 4। सो 4.8। हुण असीं की करना है x इधर ले जाने हैं 1.2x माइनस x एंड 15 माइनस 4.8 साढ़े को की आएगा। सो 1.2 विचों असी की घटाना है
1.0 सो साढ़े को आएगा थे 0.2 सो 0.2x इतने 15 विचों 4.8 घटाना है 4.8 सो 10 चो 8 गए 2 इतने 0 रह गया इतने आ गया 1 सो 10.2 10.2 इसमें से लिख सकते हैं 102 बटा 10 बराबर 2 बटा 10 एक्स कट जाएगा सो साढ़े को एक्स आ जाएगा 102 अपॉन 2 इसका आंसर 51 सो एक्स कितना है साढ़े को 51 इतने लिख लेने चीज़ एक्स इज इक्वल टू 51 एक एक्स की उम्र साढ़े को आई है भारती की उम्र जो कि भारती की उम्र है जो कि भारती की उम्र है उम्र की पता करनी है असी उम्र पता करनी है असी नीतू दी सो नीतू की उम्र होएगी कितनी नीतू की उम्र x माइनस 11 प्रेजेंट सो x माइनस 11 मतलब 51 चों 11 घटा दो उत्तर आया 40 तो 40 ईयर्स 40 साल इसका उत्तर है सो इस प्रकार नीतू की उम्र वर्तमान उम्र है 40 साल डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 361 इज दो घन हरेक का आयतन 27 सम घन है दे सिरियां नूं मिला के एक घणाव बनाया गया है दो घन हैं ठीक है इन्होंने दोनों नूं मिलाया गया तो एक घणाव बन गया साढ़े कोल आयतन दिता होया है हर एक घन का मतलब साढ़े कोल वॉल्यूम दिता होया है हर एक क्यूब का सो वॉल्यूम कितना होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज L क्यूब ठीक है भुजा की शक्ति 3 बराबर 27 सम घन इसमें से लिख सकते हैं L कितना हो गया जी इसमें से लिखता है L क्यूब इज इक्वल टू 3 सम सारे दा घन इधर लिख सकते हैं इसको 3 3 9 9 27 सो कट हो जाएगा सो इस प्रकार साढ़े कोल जो लेंथ आएगी मतलब भुजा आएगी वो आएगी 3 सम इसका मतलब ये होगा कि जो दो घन हैं इन्हों की जी भुजा है वो 3 3 सम दियां ही हैं राइट हुण जदों इन्हों मिला दिता गया H to H किनारे मिलाए गए इन्होंने इतने किनारे मिलाए गए आह 3 सम सी आ भी 3 सम सी ये दोनों मिला के कितना बन गया जी 6 सम जी ऊंचाई है वो तो 3 सम ही रहेगी ते चौड़ाई भी 3 सम ही रहेगी ठीक है सो इस प्रकार साढ़े कोल लंबाई चौड़ाई ते ऊंचाई आ गई है कि घणाव की सो इस घणाव दी लंबाई बराबर होएगी 6 सम चौड़ाई बराबर 3 सम ते ऊंचाई बराबर कितनी 3 सम ठीक है जी हुण असीं इसका सतही क्षेत्रफल पता करना है मतलब आ सतही क्षेत्रफल पता करना है कितनी सतह होंदियां हैं कीबोर्ड दियां 6 सरफेसिस होंदे ना जी 6 सतह होंदियां सो असी किवें पता करेंगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लिख लो जी तुसीं इस तरीके नाल तो लिखांगे 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ हाइट प्लस 2 इंटू हाइट एंड लेंथ ये होएगा जी इस घणाव का सतही क्षेत्रफल घणाव का सतही क्षेत्रफल हुण असीं वैल्यूज पुट अप करनी है सो 2 इंटू लेंथ कितने आया 6 इंटू ब्रेथ 3 प्लस 2 इंटू ब्रेथ 3 हाइट 3 प्लस 2 इंटू
हाइट 3 एंड लेंथ इज 6। ये हो जाएगा साढ़े को 2 इंटू 18 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 18। ठीक है जी, इतने तक आ गया अपने को। सो 2 इंटू 18 इज 36 प्लस 18 प्लस 36 कितना आ गया जी? ये 36 जमा 36 72, 72 जमा 18 90। सो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 365 है साडे कोल। एक बिल्डिंग की उचाई 21 मीटर है, एक बांदर एक छाल विच 3 मीटर उचाई चढ़ जाता है। किन्नियां छालां विच बांदर बिल्डिंग उपर चढ़ जाएगा? सो एक छाल मारदा है 3 मीटर ऊपर, ठीक है, 21 तक पहुंचना है। इसका मतलब कितनी छालां हो गई? 3 सत्ते 21, 7 छालां तो बन गई। और देख लेने हैं। 3 सॉरी इथों स्टार्ट होंदा है, इत्थे 3 6 9 12 15 18 ते 21। 1 2 3 4 5 6 ते 7, मतलब 7 छालां दे विच बंदर बिल्डिंग ऊपर चढ़ जाएगा। सो उत्तर आएगा 7 छालां विच, 7 छालां विच इन 7 जंप्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 368 इज 3 व्यक्तियों की उम्र का मध्यमान है 9 साल, तो तिना की उम्र का जोड़ कितना होगा? जो मध्यमान की गल करते हैं कि तिना का मध्यमान मतलब हरेक की उम्र जी 9 साल की है, ठीक है, तो तिना की उम्र का जोड़, क्योंकि इन्हां दी उम्र का मध्यमान है 9 साल, इसलिए हरेक की उम्र होगी 9 साल, ठीक है। तिना दी उम्र का जोड़ बराबर 9 जमा 9 जमा 9 27 साल आएगा उत्तर, ठीक है जी। ओके, जो मध्यमान दी हुई है उस बाद जोड़ पूछ लिया उन्होंने, तो मध्यमान मतलब हरेक की उम्र उन्नी ही होगी जिन्ना मध्यमान है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 373 है साडे कोल। एक व्यक्ति किसी 600 मीटर लंबी गली नू 5 सेकंड विच लंघदा है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा गति कितनी होगी? सानू उसकी स्पीड पता करनी है, ठीक है जी। स्पीड की होंगी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी बटा समा, वो पता करना असी किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब का। हुण साडे कोल जो राशियां हैं दित्तियां हुई हैं वो मीटर प्रति सेकंड के हिसाब दी हुई है, मतलब प्रति 5 सेकंड्स। सो असी की करांगे, पहले तो इन्हों असी बदलांगे जो सानू लोड़ींदी राशि है उन्हां विच। लोड़ींदी राशि की है? किलोमीटर इत्थे चाहिए, इत्थे चाहिए आर घंटा। सो पहले तो असी 600 मीटर नू किलोमीटर च बदलांगे। सानू पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होंदे हैं, ठीक है जी। 1 मीटर के बराबर होया 1/1000 किलोमीटर। कितने मीटर ने? 600 मीटर। सो 600 मीटर होया बराबर 1/1000 गुणा 600 किलोमीटर। अब 2 जीरो कट जानी है, साढ़े को आ गया 6/10 किलोमीटर। ये आ गई साढ़े कोल दी दूरी किलोमीटर दे विच। हुण समा असी घंटे विच देखना है। समा तुहानूं की दिता है इत्थे 5 सेकंड्स। सानूं पता है कि 60 सेकंड्स का 1 मिनट होंदा है,
ਤੇ 60 ਮਿੰਟਸ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 60 to 60 seconds ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3600 seconds। so 3600 seconds is equal to 1 hour, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 1/3600 आर। ठीक है जी। कितने सेकंड्स ने 5 सेकंड्स ने। सो 5 seconds is equal to 5 into 1/3600 hours। लो जी ये साढ़े को आ गया किलोमीटर्स, ये आ गया आवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ स्पीड पता करनी गति। सो गति होगी किलोमीटर्स प्रति घंटा 5/3600। ठीक है जी। ये की आ गया हम 6/10 गुणा 3600/5। ओके उल्टा देना ना इसनूं, जीरो ना जीरो कट गया जी। 5 एकम 5 5 सत्ते 35 5 दूनी 10 इतने रखोगे किलोमीटर, इतने रखोगे आवर्स। सो ये साढ़े को आ गया 6 दूनी 12 6 7 42 एक 43 किलोमीटर्स पर आवर। 432 किलोमीटर प्रति घंटा ये सारा आंसर है। सो उत्तर होएगा 432 किलोमीटर प्रति घंटा। ये साडा उत्तर है। राइट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 377 है साडे कोल पहलियां 10 टांक संख्यावां दी विचलन सीमा की होवेगी। विचलन सीमा पता करनी है। ठीक है जी। पहलियां 10 टांक संख्यावां दियां। टांक संख्यावां किहड़ियां होंदियां ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਨਾਲ ਭਾਗ नहीं होंदियां। सो पहलियां 10 टांक संख्यावां किहड़ियां ने 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 हो गई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10। ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਮਾਈਨਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ। ਸੋ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। तो इतने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कितना है 19, घट तो घट कितना है जी 1। सो विचलन सीमा कितनी हुई 18 एंड दिस इज द आंसर। राइट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 378 ਤੇ 10 क्वेश्चन है इस उड़ान शीट का जो कि अक्तूबर महीने ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ AC ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ BC ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਣ A ਹੈ, ਕੋਣ C ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਣ B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। मतलब करण आ की है आधार ते आ की हैगा या लंब। ठीक है जी। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਕੋਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ AC ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕੋਣ B। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਣ B ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਕੋਣ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ B। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2020-21 ਦੇ ਉਡਾਨ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਉਡਾਨ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗੀ। So till then, I wish you all the very best and happy learning. Thank you very much.